So hey everyone, I welcome you guys in my today's current affairs session. So let's begin. So guys, it's for the revision session it's for the revision along with the new articles. Okay, so here's the man. Okay, about Epstein file nowadays running in our news, and different personalities secrets with respect of the Epstein files are revealing as we are continue watching over the social media. Okay, so who is the man? The man is the Jeffrey Epstein. Okay, with respect of this man, these all are the case revolving around him. Okay, so हमने देखा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया कि एप्स्टीन फाइल के बारे में, कैसे जेफरी एप्स्टीन के बारे में, और कैसे इसकी जो भी सीक्रेसी है, इसका पर्टिकुलर आइलैंड, इसका हेलीपैड, और इसका जो भी बैकएंड में जो भी इसका एक वो अलग जो कि माइनर गर्ल्स होती थी उनको काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन सब का इसका इन्वॉल्वमेंट था कि माइनर गर्ल्स को लाइक है ना, इट इज़ फ्रॉम द 11 टू लाइक बिलो 18 काइंड ऑफ. सो it was in our news. Different dignitaries are also related with this particular Epstein files and this particular conspiracy. Okay, so let's move toward our today's further article. Okay, so the topic is the bacteria are multilingual. Okay, can talk to each other. Biologist. Actually, she's the lady who is biologist. Okay, so her name is the Bonnie Bassler. She's a professor. Okay, and the lecture she's giving the lecture at the IISc Bengaluru. And everyone, please let me know in the comment section what is the capital of the Bengaluru. Okay, let's begin the article. So bacteria, this particular article is about the bacteria. Bacteria can get into us, make us sick, and they can इवन किलर्स. मतलब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं और हमें मार भी सकते हैं. इतने डेंजरस ये हो सकते हैं. ओके, बट दे गिव अस आवर लाइफ टू. लेकिन ये हमें हमारा जीवन भी देते हैं. इट्स मीन टू से अबाउट वाया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो बोनी बैसलर, अ renowned molecular biologist and professor of the Princeton University, best known for her work in bacterial communication. Okay, and described bacteria as a magical microbes. मतलब बैक्टीरिया एक मैजिकल माइक्रोब हो सकता है, and holding great promise in the fields of medicine and the environment and the agriculture. So what are the fields? So the fields are medicine, environment and agriculture kind of. Okay, bacteria can talk to each other and are multilingual. तो बैक्टीरिया एक दूसरे से बात कर सकते हैं. ठीक है, ये मल्टीलिंगुअल होते हैं. have so much to teach us about how collective behaviors इवॉल्व ऑन अर्थ, कि कैसे कलेक्टिवली बिहेवियर अर्थ पे इवॉल्व हुआ है. दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द बैक्टीरियाज बिहेवियर. ओके, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इट्स अबाउट द बैक्टीरिया एंड इट्स बेनिफिट्स एंड काइंड ऑफ. सो हमें याद रखना है हु इज़ द प्रोफेसर इज़ द बैसलर, बॉनी बैसलर फ्रॉम द IISc Bengaluru lecture conference. Okay, now also talk about the. So here the Bonnie Bassler says that it's also she also talk about the gut in the sense our stomach. Okay, so bacteria is important. यहाँ पे bacteria की important बताई है हमें, and along with this also talk the TNQ. What is the TNQ, everyone? In this particular article here they mention about the TNQ. TNQ is the non-profit foundation set up in the India. Okay, for research के लिए, and bacteria could be proved as game changer. और इसी further article में ये mention है कि जो bacteria है वो game changer prove हो सकता है with respect of the different kind of the field like the medicine and like the environment and our agriculture too. Okay, so let's read more about this particular article. So for medicine and it will also can be proved as medicine as a game changer for the medicine, and by opening new avenues to develop एंटीकोरम सेंसिंग थेरेपीज़. यहाँ पे बात की है कि एंटीकोरम सेंसिंग थेरेपीज़ इंस्टेड ऑफ द एंटीबायोटिक्स. सो वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द एंटीबायोटिक्स. इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द पैंडेमिक COVID-19. ओके, सो ईच एंड एवरीवन आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द वैक्सीन डोजेज एंड एंटीजेंस एंड एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज काइंड ऑफ. सो सेवरल आर द नोटोरियस बैक्टीरियल कैरेक्टर्स. तो कुछ तो नोटोरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनके अलग अलग नोटोरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं. She said specifically citing the deadly cholera causing vibrio cholerae bacterium. तो cholera एक डिजीज़ है जो क्यों होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है. cholera is the disease which
occurred due to the bacteria. Okay, and the name of the bacteria Vibrio cholerae. Okay, bacterium. And perspective on treating the disease, the bacterium is the terrible cousin. याद रखना, ये बहुत terrible भयानक cousin है into an obscure but brilliantly bioluminescent and bacterium the Vibrio fishery that makes blue light. तो Vibrio fishery यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट होती है वो बनाने का काम करता है. मतलब गाइस मोर और लेस यहाँ पे इन्होंने बात की है कि बैक्टीरिया के यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके मल्टीपल फील्ड में इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है. सो यू कैन गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. एंड बैचलर शी इज़ प्रोफेसर एंड शी वॉज lecturing at the IISc Bengaluru, and again I'm telling you Bengaluru is also known as the Silicon Valley of our country, and also the Karnataka is its capital. So our next article about the new central fund to derive urban development. यहाँ बात की गई urban development. Before we continue this article, everyone, let me explain you about the local bodies. Okay, via the 73rd amendment, I'm writing in short, amendment in 1992 and 74th amendment in same year 1992. Everyone, 73rd amendment के थ्रू पंचायत were include in our constitution, याद रखना है. While via the 74th amendment, here the I'm writing in short, municipalities. Okay, मैं fully लिख देती हूँ. municipalities वर इंट्रोड्यूस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें याद रखना है. अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली अर्बन एंड रूरल डेवलप, अर्बन इन द सेंस हमारे शहरी इलाके, वाइल दी रूरल इन द सेंस हमारे गांव वाले इलाके. सो द यूनियन कैबिनेट ऑन दी फ्राइडे अप्रूव द लॉन्च ऑफ द अर्बन चैलेंज फंड. एक UCF लेकर आई है हमारी यूनियन गवर्नमेंट. ओके, एंड वाया दी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री विद ₹1 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंट की. ये ₹1 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, ये हमें याद रखना है. सो व्हाट कुड बी द टर्मिनोलॉजीज एंड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. Okay, so in a statement, the government said the scheme aimed to support transformative and bankable urban projects. Again, I'm telling you guys, it's related to the urban development. Okay, so all the things would we consider in this particular article, all would be related to our urban development rather than rural development. Okay, तो हम पहले ये थोड़ा highlights पढ़ेंगे, and by the using of these highlights you can easily get thorough knowledge by this particular lecture. Okay, so सेंटर allocate करता है ₹1 लाख करोड़ असिस्टेंस इन द सेंस हेल्प करना, मदद करना. गवर्नमेंट एड विल कवर 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. मतलब 25% यहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहने वाली है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. फंड्स सीक टू ब्रिंग टू फ्यूशंस गवर्नमेंट विजन ऑफ रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़. मतलब गवर्नमेंट स्पेशली सिटीज़ के लेवल पे क्या करना चाहती है. गवर्नमेंट का विजन है टू रेजिलिएंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़ रहें हमारी, सो दैट फर्दर कोई भी हमारी डिजास्टर आए या कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन या कुछ भी अकर होती इन फ्यूचर, तो वी कैन ईजिली वुड बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑल दी क्लाइमेट, ऑल दिस काइंड ऑफ दी इशूज़ काइंड ऑफ. एवरीवन, हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी आया था इन द ईयर ऑफ 2005. ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेमिटीज़ को, डिजास्टर्स को डील करता है. सो ये एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाती है. ओके, let's talk what are the aims of the government. So it aims to build, wait a moment, it aims to build resilient, productive, inclusive and climate responsive cities. Okay, positioning them as a key driver of the country's next phase of economic growth, because we want to next phase of economic growth in our country. The statement added. Okay, the fund will be operational from the financial year 2025. Okay, ये important है. 2025 to 2026 to 2030 to 31, ये ईयर हमें याद रखना है. विद एन एक्सटेंडेबल इम्प्लीमेंटेशन पीरियड अप टू 33-34. अगर लगता है इन फ्यूचर इफ़ गवर्नमेंट थिंक दैट वी शुड एक्सटेंड, तो टाइम पीरियड कुड बी 33 to 34. दिस इज़ द टाइम एरा. ओके, let's talk about the urban makeover. What is this particular para is saying that the urban challenge fund seeks to leverage private participation. Okay, private participation रहेगा for total investment of ₹4 lakh crore. Total investment रहेगा ₹4 lakh crore in the next 5 year, upcoming 5 year में. The fund will be operational, ये मैंने बता दिया है. A dedicated 5,000 crore corpus to enhance the
क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ 4223 सिटीज़। तो सिटीज़ नंबर इंपॉर्टेंट है, 4223 सिटीज़ रहेंगी एंड एक डेडिकेटेड कॉर्पस रहेगा अराउंड 5000 करोड़ का। सो इट इज़ द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, all urban local bodies in hilly states and in northeastern states and those with a population below, जिसकी भी जो population है below 1 lakh है, will be eligible for support under the credit repayment guarantee scheme। तो जिसकी भी population below 1 lakh है, especially if I just talk about the hilly state like our हिमाचल प्रदेश and kind of, and हमारे नॉर्थ ईस्टर्न if I just also talk about the 7 sisters kind of, तो इन सभी में जहाँ की population below the 1 lakh है वहाँ गवर्नमेंट क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी या सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। सो गाइस दिस वाज आवर आर्टिकल। ठीक है, ये मैंने बता दिया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ओके, लेट्स, ये है एक्चुअली द कुमार भास्कर वर्मा सेतु, नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ये हमारा जो है अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र ये बिल्टअप है एंड वाज डेडिकेटेड टू द नेशन को डेडिकेटेड है वाया द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये इंपॉर्टेंट है, नाम है कुमार भास्कर और लोकेशन ब्रह्मपुत्र रिवर इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक द अरुणाचल प्रदेश, आसाम काइंड ऑफ, एंड ऑल्सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द तिब्बत एरिया विच इज कम्स अंडर द चाइना। ओके, सो तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस ये डेडिकेट किया गया है वाया नेशनल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन सैटरडे। सो दी 6 लेन कॉन्क्रीट ब्रिज, ये 6 लेन का ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज है। ओके, इज एक्सपेक्टेड टू कट दी ट्रेवल टाइम बिटवीन गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में बाई 7 मिनट यहाँ पर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 मिनट टाइम रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी। ओके, so it's our map and guys you can see this is the area। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इट्स सिक्किम, सिक्किम्स कैपिटल इज द गंगटोक। ओके, आसाम कैपिटल इज द दिसपुर, you can see। Yeah, next article, it is about the India has not lost strategic autonomy after US deal, says जयशंकर in Munich। Actually currently जयशंकर साहब is in our Germany। ठीक है, जर्मनी की जर्मनी की एक सिटी है मुनिच, वहाँ पे ये मीटिंग है। तो हमारी इंडिया की साइड से इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। सो हियर ही टॉक अबाउट द यूएस डील एंड एस जयशंकर हु इज़ द MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि मैं आपको टाइटल से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सो इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट बेट मोमेंट, नॉट लॉस्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब यूएस के साथ डील करने से इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो लॉस्ट नहीं की है। ये मुनिच में अभी जो विजिट पे हैं हमारे MEA सर एस जयशंकर साहब वो बता रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ here he talk about the we are very much wedded to strategic autonomy, said Mr. S. Jaishankar sir at an event on India and Germany navigating global uncertainty with German Foreign Minister Johann Wedful at the Munich. Okay, security conference is over there, so that's why it is in our news. Here you also talk about on the India-Europe Middle East corridor. Mr. Jaishankar said the project was progressing. Project हमारा IMEC में बहुत प्रोग्रेस कर रहा था and but not at the pace that was initially expected due to conflict in West Asia। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। तो यहाँ डिफरेंट कंट्री के बारे में भी थोड़ा उन्होंने अपना व्यू रखा एंड यहाँ पे क्या पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन हुआ, स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या दो कंट्री के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ जर्मनी विद रिस्पेक्ट ऑफ आर IR इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारी ट्रेड डील्स क्या मतलब हमारी क्या क्या नेगोशिएशन एंड डील रही। ओके, ये गाइस हमारा प्रीवियस आर्टिकल है बिफोर 2 and 3 days इट वाज वेरी ट्रेंडिंग इन आर न्यूज़। सो टोबैको पेरेंट्स सन शिवम मिश्रा, ये इसके पास थी लंबोर्गिनी, तो इसने ठोक दिया कहाँ पे, ये है यूपी कानपुर का केस। तो इन्होंने कई लोगों को कुचल दिया, ठीक है, और लेकिन ये बच जाते हैं फिर भी। तो ये हमारे लूप होल्स के बारे में बताता है, हमारे सिस्टम के लूप होल्स के बारे में बताता है, हमारे सिस्टम के फेलियर्स के बारे में बताता है। एज गाइज वी नो दैट दी आर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर इन दी 7th शेड्यूल। ठीक है, इन दी 7th शेड्यूल देर आर 3 लिस्ट हैं। ठीक है, कॉन्करेंट, आई एम राइटिंग शॉर्ट, कॉन्करेंट, स्टेट एंड यूनियन। वेट मोमेंट, यूनियन। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, याद रखना है, लॉ
एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो बेल मिल जाती है कितने रुपए देने के बाद, ओनली 20,000। बट किसी इंडिविजुअल की लाइफ, उसके राइट टू लाइफ का कोई मैटर नहीं रहता है। ये सिस्टम का लूप होल है एवरीवन। इट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम यूपी's कानपुर। यूपी's कैपिटल इज़ द लखनऊ, हु इज CM योगी आदित्यनाथ sir. So guys, here is the extra information about the 17 sustainable development goal, and again the fundamental right. Currently there are six fundamental right. I am writing in short. Right to life with dignity under article 21, ये important है, तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन के लिए हैं। 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, सॉरी, है ना 30। सो गाइज, ये अगेन AI से रिलेटेड है। व्हाट हैज़ गवर्नमेंट लेट डाउन ऑन AI लेवलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने जो भी गवर्नमेंट का एजेंडा है क्या, तो यहाँ पे मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ गवर्नमेंट ने, यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने IT रूल्स 2020 में कुछ अमेंडमेंट करने की बात की है। AI से रिलेटेड क्या हमारे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स हैं, उनके बारे में बात की है। अमेंडमेंट रूल 2026, ओके। एंड रिक्वायर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोमिनेंटली एंड लेबल सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट वाया दी AI, ठीक है। सो दैट्स वाई इट वॉज इन आर न्यूज़। सो या यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ अबाउट दी, ठीक है। सो टू फैक्ट टू बी गुड, है ना, ज़्यादा गुड होना भी बहुत फेक हो गया है आजकल। ऑन AI जनरेटेड इमेजरी लेबलिंग, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द बोथ इन सेल, वन साइड इज द फेक, अनदर साइड इज द रियल, ओके। And guys, you can see the thundering hooves. A pair of buffaloes runs through a slush field during the Jaya Vijaya Jodukare. ये कम्बाला फेस्टिवल के स्टैंड फॉर के कर्नाटका से, ठीक है। सो इट्स अ बुलक कार्ट रेस, यू कैन सी ओवर हियर। एंड जेपिना मोगारू इन मंगलुरु कर्नाटका से ये न्यूज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे 25 to 28 हमारे बात हो जाता है, राइट टू रिलीजन की बात करता है, ओके, एंड कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, ओके। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, नाउ यू कैन सी द रिवीजन सेक्शन। में ये जो हमारे बुक है नरवणे साहब की, उसके बारे में जो प्रीवियसली मैंने बात की। ये पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात, ये है आसाम से, सो ठीक है। आसाम कैपिटल इज दिसपुर। CM हिमंता बिश्वा शर्मा, इनके बारे में मैंने प्रीवियसली आर्टिकल के बारे में बात की। एंड फॉर बाउंड्रीज, है ना,